वो टीवी वाला अंदर की बात नहीं सर, वो जो ऐड आता है। Right. So let's open the हम मंच को खोलते हैं and Shabnam, let the audience ask their questions. Yes. अगर किसी को सवाल पूछना है, आप प्लीज अपना हाथ रेज करें, हम आपको अनम्यूट करेंगे अपनी तरफ से। और जैसे ही आप लोग सवाल पूछने वाले हैं, मैं आपको एक और सूचना दे रहा हूं कि अगले महीने अक्टूबर के आखिरी फ्राइडे में हमारा गेस्ट होगा योगा, और वो ब्लाइंड लोगों को योगा सिखाते हैं और वो खुद ब्लाइंड है, तो वो होगा हमारा गेस्ट एंड ऑफ अक्टूबर। सो मैं अभी से आपको सूचित कर रहा हूँ। We will write to you. Please go ahead with the question now for Rajesh. Yes, Chandrai Datta. Can you unmute yourself? अपने आप को unmute कीजिए अपनी तरफ से। Chandrai, हाँ जी। Am I audible, Yes. ma'am and sir? Yes, Yeah. yes, you are audible. Okay. Yeah, a very good evening to everybody, and it was really enriching session. I just have a question towards you, sir. So, like, we have ample of current affairs to have a grip upon all those, like starting from Yojana, Kurukshetra, monthly magazines, daily newspaper, everything. And for a visually impaired person, it's I won't say it's impossible, but it's really very challenging to compile your notes and prepare, as the topic says that you have to make your notes while you go for the examination. So what you will give suggestion, what is your suggestion to give upon the current affairs? I mean, obviously it is one of the most difficult part of your preparation, to be very frank. Current affairs covers around, I think, 50% of the whole exam, means at least PT means, and it will definitely impact your interview also. मेरे हिसाब से, see, what is your, I'm forgetting your name. My name is Chandri, sir. Chandri. Chandri. You are talking about Kurukshetra, you are talking about the Yojana, you are talking about newspapers. You are talking, I mean, there is also EPW, also very good magazine, I would say, Economic and Political Weekly. What is the best part of your, I mean, you have to handle it. You should know what actually you have to read. You should know what you have to reject. Until or unless you will not decide it, then you cannot read the, whole stuff always. Like, योजना कुरुक्षेत्र का जैसे कि आपने चर्चा किया, I mean, you are talking about Yojana and Kurukshetra. It's very good magazine, but it's not necessarily that every article or every topic is important or relevant for you. So you should know exactly which part of the magazine that you have to avoid, which part of the magazine you have to select, and accordingly what you do, you just I mean, if you really want to purchase, obviously you can purchase it. If you really want to, if they are good friends with you, you can borrow from them also and get it xeroxed, and then you can scan it also. So I kept on scanning these things. Like, let me tell you frankly, जैसे योजना और कुरुक्षेत्र का जो पेपर रिफ्लेक्शन है, जो उसका पेपर क्वालिटी, इट्स वेरी गुड. It will always give you, recognition up to 99-100%. But EPW will also give you, I mean, very good this thing, because योजना और कुरुक्षेत्र या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकलीज में आप देखोगे, उसमें पिक्चर बहुत कम होते हैं, बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट. बट द मोमेंट यू विल स्विच ओवर टू आउटलुक पढ़ना है, इंडिया टुडे पढ़ना है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो आर्टिकल, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी आल्सो. यस, ऑफ कोर्स, यू कैन गो अहेड. उसमें आपको हैंडल करना पड़ता है कई बार कि जो उसमें जो पैराग्राफिंग होती है उनकी, जो उनका जो मैगजीन है, उसमें लेफ्ट साइड में देखोगे कि सर्टेन पार्ट ऑफ द पेज इज कवर्ड बाय द पिक्चर एंड रेस्ट इज बिल्कुल एल शेप में आता है वो. तो उसको जो है आप कैसे करोगे, तो वहां पे थोड़ा तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा. आई मीन, यू शुड नो कंप्यूटर आल्सो, कि कैसे एडिट कर लेना है, नहीं कर लेना है. आपको बहुत अधिक दिक्कत आएगी जब आप आंकड़ों को, जब डेटा जो होता है ना, जैसे आप ईपीडब्ल्यू में देखोगे, इट्स फुल ऑफ डेटा. जो आर्टिकल होता है, इट इज सब्सटैंशिएटेड बाय सो मेनी डेटा कवरिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस.
वो डेटा जो है रेंडमली क्या होता है ऊपर नीचे हो जाएगा। 59 है। क्या while there's a gap, I just want to ask you, you said you have to choose, you have to select what you have to read in terms of content. So EPWD हो या कुरुक्षेत्र हो या योजना हो, उसमें से how do you decide what you should read and what not to read in terms of subject? नहीं sir, if she is a true aspirant of civil services, she must be knowing this, because क्या होता है सर कि जब हम लोग किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो हम लोग एटलीस्ट पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक को चेक करते हैं, and it's not necessary that you will get the same question every time, but at least you know the area that you have to cover, right? लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि हम अगर बोलेंगे कि आप बहुत सेलेक्टिव चूज करके पढ़ें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि just out of your constraint, just because of constraint you keep on choosing only that part which is accessible to you. तो कई बार ये भी हो जाता है कि हमें लगता है कि अरे मतलब है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन चलो छोड़ो, इसमें बहुत ज्यादा डेटा वगैरह है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस चीज में डेटा होती है या फिर बहुत ज्यादा डिजिट्स होते हैं, वो जब आप स्कैन करते हो तो वो सेम उसमें नहीं आता, पैराग्राफ में सेम ढंग से वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपको अपने फ्रेंड्स को पकड़ना पड़ेगा कि भाई जो मैंने स्कैन किया है इसको मैच करना है, तो वो आपको करेक्शन करके रखना पड़ेगा। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि अब तो बहुत ऑनलाइन मैगजीन्स भी आ गई है ना मेरे हिसाब से, तो अब तो हमारे समय तो उतनी ऑनलाइन मैगजीन्स वगैरह नहीं थी, लेकिन व्हाट आई फील टुडे यू कैन गो थ्रू लॉट्स ऑफ ऑनलाइन मैगजीन्स आल्सो। आपके पास वो एक्सेसिबिलिटी है अब एज कंपेयर टू ड्यूरिंग 2004, 3, 5, सो वी वर फेसिंग दिस ह्यूज क्राइसिस। अब शायद चीजें, अभी भी क्राइसिस तो है पर होगी, लेकिन अभी थोड़ी चीजें कम हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न आपका और क्या था इसके साथ, शायद आपने कुछ और भी sir, I have 2 more questions and I'll stop. So first question is like for a visually impaired student or person, like it's very difficult to visualize the map of our world, like India अच्छा world, ठीक whatever ठीक it is. ओके ओके, लेट मी टेल। So any solution for that? हाँ, solution is always there. Let me tell you frankly. I opted history as an optional, history and public administration, right? और हिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी है, और वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है मैप का। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है फिर। आई मीन दैट इज द कंपलसरी फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन ड्यूरिंग आवर टाइम। आई डोंट नो नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट। और मुझे जो क्वेश्चन मिला था वो मैप का मिला था। तो देखो, मैप को करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसमें क्या करना है कि अच्छा, आर यू कंप्लीटली, आई मीन यू कैन नॉट सी एट ऑल। Yeah, it's like blur, sir. But हाँ नहीं, blur, laptop हाँ and नहीं, everything, ठीक, it's completely white for me. Yeah, I cannot अच्छा see ठीक, any write up. ओके ओके ओके। तो आप ऐसा करना कि जो आपका जो, जैसे आपने वर्ल्ड मैप बोला या फिर इंडिया का मैप हो, हिस्टोरिकल मैप हो, आप पहले मैप का आउटलाइन करवाओ। पहले मैप को जीरोक्स करवाओ। आप अपने पास कम से कम 100 जीरोक्स के मैप्स रखो आप, एंड आस्क समबडी कि वो क्या करे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप कैसे कंफर्टेबल है। उस पे आप चाहो तो उस आउटलाइन पे आप थ्रेड चिपका सकते हो, या उस आउटलाइन पे आप चाहो तो एक कंपास के थ्रू आप चाहो तो उस पे वो कर सकते हो, उसको एम्बोस कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो टेक्टाइल मैप्स भी मिलते हैं। और मैप करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैप बड़ा हो या छोटा हो, आप नॉर्थ से साउथ एक सीधी लकीर खींचो 180 डिग्री, और वेस्ट से ईस्ट एक सीधी लकीर खींचो। वो जो क्रॉस बनता है वहां से आपको ये आपको वहां से एक आधार मिल जाएगा कि इस लकीर के कौन सी चीज कहां पे है, ऊपर कितनी है, नीचे कितनी है। तो अपने मैप को इसी तरीके से आप ग्रिड में डिवाइड कर दो। जैसे आपने एक लकीर खींची सीधी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अगेन आप ऐसे ही मैप को डिवाइड कर दो, उस पे उसको प्रॉपर सेल बन जाएगा। वो जब वो मैप प्रॉपर सेल बन जाएगा तो आप उस मैप को
छू के पता कर सकती हो कि इस सेल के लेफ्ट कॉर्नर में एक्सट्रीम में क्या है, राइट कॉर्नर एक्सट्रीम में क्या है, मिडिल में क्या है, लेफ्ट में क्या है। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन मिलता था उसमें ये था कि जैसे उन्होंने पूछा कि भाई आप ये बताओ वाराणसी के बारे में, वाराणसी के बारे में आप इसको मैप पे पॉइंट आउट करो एग्जैक्टली वेयर वाराणसी इज एंड देन राइट 20 वर्ड्स अबाउट इट। तो मुझे ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरात से होके ईस्ट तक जाती है, वाराणसी बिल्कुल जब आप लकीर खींचोगे तो उसके एकदम जस्ट जहां से ये उड़ीसा का कर्व होता है, यहाँ पता नहीं आपने मैप फॉलो किया है कि नहीं। तो आप जो है दो तरीके से हम लोग करते हैं, जो आउटलाइन होती है हमारे मैप की, एक तो वहां से क्लू लेते हैं। आधार तो मैप पे लेना पड़ेगा ना आपको, मैप किस तरीके से शेप ले रहा है। अगर जब आप थ्रेड चिपका दोगी तो आप अपने साइड मैप को टच करोगी तो आपको पता लग जाएगा कि इसके लेफ्ट में क्या है, इसके राइट में क्या है। शायद मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, Map- it is a bit difficult, but I'll try surely. हाँ नहीं, इसे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम 100% होने वाली चीज है। इसमें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैप शेप लेता है, बाउंड्री का आउटलाइन जो लेता है, या फिर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो अटलांटिक जैसे जिस तरीके से बीच में से जाता है, या जो भी है पैसिफिक का क्या है, या तो आप मैप पे आपको मतलब इसको आप बस ऐसा बनाना है कि आप एक्सेसिबल हो सके वो आपके लिए, दैट्स इट। आई मीन मैंने आपको आइडिया दे दिया क्या करना है। और वो जितने भी प्लेसेस हैं तुमको एटलीस्ट 500 प्लेसेस तो उसमें याद करने पड़ेंगे। कुछ प्लेसेस जो है आउटलाइन, जो बाउंड्री आउटलाइन है उस पर याद करनी पड़ेगी। कुछ आपको अगर वर्ल्ड मैप इक्वेटर के कितना क्लोज है, कितना दूर है, वो याद करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं जिन्हें दिख रहा है मैप पे आप बोलोगे तो एग्जैक्ट वहीं पे, क्योंकि वो भी इसलिए एग्जैक्ट पहुंच पाते हैं क्योंकि उनको पड़ोसी का पता होता है कि ये चीज यहाँ पे है तो ये यहाँ है। तो ये तो मैप पे आपको एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपकी ये चीज सॉल्व हो जाएगी। Sorry to Yeah. interrupt you, sir, but nowadays in history, it is not compulsory that map question. नहीं, हमारे समय पे वो कंपलसरी था। Yes, sir. In those times, yeah. हाँ, हमारे समय पे वो कंपलसरी था एंड Yeah. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी कि ये मुझे बाद में पता लगा कि ये कंपलसरी है, मैप बिना किए आप नहीं कर सकते। और अच्छी चीज ये है कि आउट ऑफ 20 प्लेसेस आई हैव मार्क्ड 19 प्लेसेस करेक्ट। एक प्लेस जो मेरा गलत हुआ तो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और चंदेरी और चंदौली जो जगह है, चंदौली बनारस के पास है, चंदेरी राजस्थान में है। मेरे बगल में एक लड़का रहता था हॉस्टल में, वो चंदौली का था, तो मुझे वही याद आ गया कि शायद वहीं पे है, तो मैंने वही बनारस के पास टिक कर दिया। लेकिन मैप इज नॉट ए डिफिकल्ट दिस थिंग। अगर कोई शिप चलता है, आप देख लेना कि अगर शिप यहाँ से चलता है तो फिर वो कैसे कैसे उसका रूट क्या है, एक दिन बाद पहुंचता है, एक दिन पहले पहुंचता है। ये तो करने की चीज है, तो प्रैक्टिस की चीज है, तो आप कर सकते हो। What's your third question, Chandri? Yes, thank you so much, sir. So my third question is, I'll combine both the questions together. So first one is CSAT. We face lots of difficulty like in terms of CSAT, and the last question is like, so I'm preparing by myself, like in my home only, but I really want a group of people who can discuss it. This question is towards George sir also. If IWay organizes a session, like group of people discusses on a particular issue or something which can broaden our thought process and everything. But So why yes, are you yes, that's all. Thank you. why are you preparing alone? Who is stopping you to mix with others? I can't Yes, understand and this I'm situation. staying in Mumbai, but I don't know where to go and where to approach, because I tried myself to accommodate me to any organization or like coaching institute, but then it is a bit Yeah. difficult. I don't know. I mean, I Yeah, cannot. I think, but the thing is that I think Chandri, I think that's a good thought, and I think it's something that we will explore. Yeah, we'll explore. Let's take this Okay. discussion Thank you, sir. offline. That's all my question. नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको ये दिक्कत इसलिए ज्यादा आ जाएगी, ट्राई टू मिक्स विद पीपल। आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल दैट नोबडी कैन। देखो ये सिचुएशन तो मेरे साथ भी थी, लेकिन आपको वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी व्हेन पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग आल्सो।
You should I'm have always ready something. to mix with people, sir. But the thing is that Hmm. during this pandemic time, I don't know where to हाँ go and whom to हाँ approach. पेंडेमिक Yeah. में तो थोड़ा दिक्कत है चंद्री. I mean nobody is mean. I mean Yeah, I'm a even people's person, sir. So no हाँ worries about हाँ. that. George sir wanted to come in regarding Chandri's question. Yeah. We are preparing for MPSC. We offer free of cost online MPSC coaching. But if it is UPSC, then probably you will have to look out for some option. But then we can really help you with that if you are a visually challenged person. So Chandri, this is Salil Jandial from the Victoria Memorial School for the Blind. So they have an online training program for Public Service Commission aspirants in Maharashtra. Right, So sir. if you're looking at that, you could take benefit. Yes, from sir. I that. have been there also in 2018, so I Yeah. got to know about this. But it's not for UPSC. But whatever it is, the issues are issues, so no problem Yeah, about it. yeah. No, I you can- raised it. We will try and discuss and Yes, do sir. something. Try and Sure, do sir. something about Sure, it. Yeah. sir. Sure, sir. Okay. Sure. Who's the next Thank you. question? Who's the next question? As well in future. Yeah. Yeah. Nitin, we can take question from you now. There are a couple of other hands that are up, so we'll. There are about seven. There were 7 hands that last. Nitin, you can ask your question. Please unmute yourself. Nitin, can you unmute yourself, please? Otherwise, while you come back, we will take question from Rishabh Singh. Rishabh, please unmute yourself and ask your question. Yes, Rishabh, go ahead. नमस्कार सर, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ इस समय और मेरा ऋषभ प्रश्न बोलिए. ये है सर कि मैं यूपीएससी आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इस समय मैं बैंक में जॉब करता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में, और शाम को सर बैंक के बाद आ पाता हूँ, तो जो मेरे पास समय है केवल उसी में ही पढ़ सकता हूँ. और मेरी प्रिपरेशन की जो तरीका है इस समय ये है कि मैं एक छोटे भाई से रिकॉर्डिंग्स के लिए या तो बुलाता हूँ, रिकॉर्डिंग करवाता हूँ, या फिर बुक्स है वो पढ़वाता हूँ, क्योंकि मुझे सर ब्रेल नहीं आती है. तो क्योंकि लेट मैं ब्लाइंड हुआ था तो मुझे ब्रेल नहीं आती है और उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाया. और दूसरी बात ये है सर कि एक तो ये तरीका है सर कि कैसे मैं प्रिपेयर करूँ. एक तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूँ पर उसमें समय अच्छा खासा निकल जाता है, जो कि समय की मेरे पास कमी है. और दूसरा प्रश्न सर यहाँ पर ये है कि प्री और मेंस पे जब हम तैयारी के दौरान जब एग्जाम देंगे तो राइटर या स्क्राइब जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है और बाकी अंग्रेजी माध्यम से मैं दूंगा सभी. तो क्या ऐसा होता है कि एक जो राइटर है वही सारे एग्जाम लिखेगा, या फिर हम ऑप्शनल के लिए, क्योंकि हिंदी है तो एक थोड़ा सा अच्छी राइटिंग वाला व्यक्ति हो हिंदी में तो अच्छा है, क्योंकि सामान्य रूप से जिसकी हिंदी राइटिंग अच्छी हो और अंग्रेजी की अच्छी हो वो थोड़ा सा संभव नहीं है सर मिलना. तो और प्लस सर मुझे गाइड कीजिएगा कि मुझे और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है. और मैं पिछले लगभग 7-8 महीने से ही स्टार्ट किया है मैंने तैयारी करना. नहीं ठीक है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है. मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग बहुत रिलाय करने की आवश्यकता नहीं है आपको. आप बैंक में काम करते हो तो अपने सॉफ्ट कॉपी का यूज करो मैक्सिमम. पहली बात तो जो मुझे फील होता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, स्टार्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर. उसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है जो मुझे लगता है. दूसरी चीज ये है कि आपके पास समय की कमी है, तो हो सकता है थोड़ा लंबा समय लग जाए. मुझे तो आप बहुत इंटेलिजेंट साउंड कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत दिक्कत होगी. लेकिन जो आपने ये प्रश्न पूछा ना, हिंदी का जो स्क्राइब देते हैं वो लोग, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो और वो लोग चेंज कर देते हैं. मैंने भी चेंज कराया था एक बार, तो मुझे ऐसा फील हुआ. लेकिन हाँ, दे विल चेंज. उनके पास एक पूल होता है स्क्राइब का. कुछ लोग उसमें रिटायर्ड डिफेंस के लोग होते हैं, कुछ ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, तो उनका तो काम ही होता है लिखना. उनको हिंदी और इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत होती नहीं है, टू वेरी फ्रैंक. लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहुत शुद्ध और सशक्त भाषा का प्रयोग करोगे, आप एकदम परिष्कृत हिंदी लिखने वाला व्यक्ति आपको चाहिए, तो यू कैन रेज दिस क्वेश्चन कि भाई मुझे अच्छा हिंदी का स्क्राइब चाहिए जो. और अब तो आजकल तो देश में तो हिंदी में ही सारी लिखावट हो रही है, लिखने का काम हो रहा है. तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए. लेकिन यू कैन ऑलवेज रेज दिस क्वेश्चन कि भाई आई नीड समबडी हु इज
quite good at Hindi and he or she can write good Hindi, तो उसको चीज को एड्रेस किया जाता है. जी सर. हम्म. सर प्रश्न अभी मेरा अभी थोड़ा सा अधूरा रह गया उत्तर उसका. हिंदी माध्यम से तो मैं हिंदी लिटरेचर है वो तो सर हिंदी में ही लिखना है, और क्योंकि अंग्रेजी का बाकी सारा का सारा मैं इंग्लिश मीडियम मैंने चुना है. अब नहीं वो ऐसा ही होता है, वो दिक्कत नहीं होगी आपको. अच्छा, चेंज कर सकते हैं. हाँ, वो लोग चेंज कर देते हैं बिल्कुल. नहीं, अगर आप वैसे भी बोलोगे कि इसको चेंज करो, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्क्राइब, दे विल चेंज, दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल. क्या ये सर, क्या ये अनिवार्य है कि हमें जो राइटर लेना है वो उन्हीं से लेना है? हाँ, उन्हीं से लेना है, वो अनिवार्य है. उन लोग का उनका बहुत बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम होता है. दे विल गिव यू स्क्राइब एंड फॉर ईच टेबल दे इनवाइट पीपल फ्रॉम द डिफेंस. वो आपका इन्विजिलेटर होता है हर टेबल पे, और वो स्क्राइब होता है और वही देते हैं. क्योंकि मेंस के क्योंकि पीटी के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं. अब तो सी सेट हो गया तो शायद पता नहीं है जो. नहीं सर, वैसे अभी जुड़ते नहीं है. हाँ, तो मेंस और इंटरव्यू का होता है, तो दे मेक इट अ पॉइंट कि चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही रिलायबल होनी चाहिए. और एक सर, एक छोटा सा निवेदन और है आपसे सर. अपने इंटरव्यू के विषय में सर, यदि कोई महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने जो अनुभव किया है वो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं भी सुनना चाहता हूँ. छोटी सी कोई बात ऐसी जो कि आप सिखाना चाहते हैं कि ये इस विशेष रूप से विजुअली इम्पेयर्ड इसका ध्यान रखें इंटरव्यू में. नहीं, एक्चुअली हाँ, इंटरव्यू में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि they are looking for a very I would say disciplined and efficient subordinate. तो कई बार हमारे अंदर क्या होता है कि आप there is a very thin line between confidence and arrogance, to be very frank. और आपके मन में शायद चीजें ऐसी नहीं होती कि आप बहुत एरोगेंट हो, बट हाउ इट रिफ्लेक्ट्स अक्रॉस द टेबल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने एटीट्यूड को बहुत ज्यादा एक तरीके से उस ढंग से आपको बनाने की आवश्यकता है. मतलब एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ योर एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों के सामने जो है आपको बहुत ज्यादा इंश्योर करना पड़ेगा. आई मीन यू कैन नॉट मेक देम राइवल एटलीस्ट. तो हाँ, तो ये चीज मुझे पहले इंटरव्यू में ऐसा फील किया कि पहला इंटरव्यू जो मेरा था वो आई थिंक वाटर कंजर्वेशनिस्ट थे, वो सम वाला करके उनका नाम था. चेयरपर्सन ही स्कोल्डेड मी आल्सो कि नो मेरे से ये गलती हो गई थी कि विदाउट टेकिंग द परमिशन आई थॉट कि आई विल गेट आउट ऑफ द रूम, थैंक यू बोल के. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दे हैव रिजर्व्ड वन पीपल हु विल कम एंड होल्ड माय हैंड एंड ही विल टेक मी अलोंग विद हिम. तो आई थॉट कि तो बहुत मुझे खुद जाना चाहिए. जब मैं आया हूँ, वो लेके आए हैं, तो मुझे रास्ता पता है, तो शायद मुझे रूम से खुद बाहर जाना चाहिए. जी. तो इट डिपेंड्स हाउ दे टेक इट. समटाइम्स इसको बहुत पॉजिटिव सेंस में भी लिया जा सकता है, कई बार नेगेटिव सेंस में भी लिया जा सकता है. जी. तो मेरे हिसाब से अपने आप को बहुत थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़ती है. आप जब और लोगों को देखोगे प्रिपरेशन करते हुए, तो आपको फील हो जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी में वो क्या चीज होनी चाहिए जिसको लोग लाइक करते हैं. जी सर. और सर अंत में 2 वाक्यों से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ. एक तो सर ये कि आपने जो लड़ाई लड़ी है और डीसी डीएम के पद पे सर आप पहुंचे, हम जैसे लोगों के लिए जो भविष्य में होने वाला है, हमें आपने रास्ता जो है इतना सरल कर दिया और सुगम कर दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप थैंक यू बॉस, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक टू यू. धन्यवाद सर. Okay, thank you, Rishabh. We'll go to Pratik Kumar Mishra. Pratik, please unmute yourself अपना सवाल पूछने के लिए. हाँ जी. सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर, मेरा सबसे पहले तो मेरे 2 क्वेश्चन है सर. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, अभी तो मेरा 10th क्लास चल रहा है, पर फिर भी अगर मैं अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, मतलब अभी से एकदम रेडी होना चाहता हूँ यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह को क्लियर करने के लिए, तो मुझे किस तरह की स्ट्रेटजी का यूज करके पढ़ना होगा? नहीं, देखो मैं इसके बारे में एक बताऊं. ये चीजें, ये जो फीलिंग हमारी होती है कि कई लोग 8 से बोलते हैं, कई लोग 10 से बोलते हैं,
मुझे ऐसा फील होता है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आपके पास वो ना, इट्स नॉट अबाउट रीडिंग द बुक्स, इट्स ऑल अबाउट द विजन, इट्स ऑल अबाउट आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स वगैरह जो होती हैं वो 12th के बाद बहुत ज्यादा हो जाती हैं कंपेयर टू 10th। तो मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। You may do much better things what you are thinking right now. So I would suggest you कि अगर आपको एज ए स्ट्रेटेजी काम करना है तो जस्ट इन्वॉल्व योर सेल्फ। जो डिस्कशन होता है, देखो उसकी बहुत प्रिपरेशन बहुत डीप होती है, उसको प्रिपरेशन को बहुत, हम टीवी पे जब एड भी देखते हैं तो उसको भी प्रिपेयर करना पड़ता है कि इसका ओनर कौन है, इसकी कंपनी क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, इसके प्रोडक्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग लॉस कितना है, इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अगर शिप से जाता है तो कहाँ जाता है, इस कंपनी का जो है शेयर मार्केट से भी लिंक करके आप उसको देखते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू रीड अबाउट इट। सीईओ का बैकग्राउंड क्या है, पहले कहाँ कहाँ सर्व किया है, वहाँ पे क्या। तो आप किसी चीज को जब पढ़ते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो छोटी सी चीज पढ़ते हो, उसकी पर्सपेक्टिव होती है, उसमें एक विजन होता है, आपको वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया, इफ इट इज ए रेनी सीजन तो आपको रेनफॉल का पता होना चाहिए, आपको ड्यू पॉइंट का पता होना चाहिए, आपको फॉरेस्टेशन का पता होना चाहिए, आपको ड्रेनेज सिस्टम का पता होना चाहिए, इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर स्मार्ट सिटी क्या है, हम लोग कितना रेनफॉल जो होता है उसको कितना कंजर्व कर पाते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ऐसा नहीं होता कि एक छोटी सी चीज है उसको आप अगर कहोगे कि हमने ये पढ़ लिया है, पढ़ने से नहीं होता है, आपको उसमें एक विजन इन्वॉल्व होना होगा। जो मैंने आपको बातें बताई इसी पर्सपेक्टिव से आप पढ़ सकते हैं। जैसे मुझसे एक इसने बोला इंटरव्यू का, तो मुझसे पूछा गया कि हु इज योर बेस्ट क्रिकेटर। So I said Sachin Tendulkar. He said why? I said his conversion rate is very high, and they are also very intelligent people. They said why not Sanjay Jayasuriya? Because Sanjay Jayasuriya is the only player who played at all the downs, right from 10 down to and he became a very ferocious opener, and finally he became captain of his team. And by all stretch of imagination, if you compare, उसका टेस्ट का भी जो है 340 बनाया इंडिया के अगेंस्ट ही, वो वनडे का भी उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। So they were saying कि why not Sanjay Jayasuriya, why Sachin Tendulkar, you have to defend it. तो ये सारी चीजें वो लोग इसको इस ढंग से ग्रिल करते हैं। They will not leave you like आप कुछ भी बोल के चले गए और वो सुन लेते हैं, तो आपको उसी ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रतीक। तो फिर सर आपने इतने लार्ज स्केल की स्टडी की तैयारी कैसे की सर? इतना लार्ज स्केल पे आप कैसे स्टडी कर पाए? इट्स योर कमिटमेंट, आई वुड से। ये तो कमिटमेंट। तुम क्रिकेट वगैरह खेलते हो कि नहीं खेलते हो? सर नहीं सर, क्रिकेट नहीं खेलता मैं। हाँ तो खेलना शुरू करो। जब मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली फिट, मेंटली फिट, फील क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हम लोग करते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों पे वो आपको ग्रिल करते हैं पकड़ के। जो आपने कपड़ा भी पूछा हुआ है, जैसे आपने रेमंड्स का कपड़ा पहन के गए हो, आपको पूछेंगे टेल मी यू आर वेयरिंग द शर्ट, आई विल से यस सर एंड इट्स अ नाइस शर्ट। आप बोलेंगे थैंक यू सर। अच्छा व्हाट इज द थ्रेड काउंट ऑफ योर शर्ट, टेल मी। आप जब जाते हो मार्केट में, जब शॉप में आप उठाते हो शर्ट को, आप उसका थ्रेड काउंट नहीं देखते, लेकिन वो फिर वो रेमंड्स की हिस्ट्री पूछने लगेंगे। Why this ad is the complete man? Do you think are you complete man when you are wearing this Raymond shirt? तो ये सब ग्रिलिंग होती है। तो तुमको बहुत थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। जैसे उन्होंने एक पूछा मुझसे व्हाट इज लव, टेल मी, और he started laughing saying यार you are from JNU so obviously you must be knowing what is love. So I had to control my emotion. I said I was not preparing for this question. I said so it's all about feeling good,
Then finally I realized, I said, our association with nature is love. So he got satisfied with this answer. It's not necessary. Sometimes you may be able to answer it. Sometimes it's not necessary कि वो जो सोच रहे हैं आप वही आंसर करें और सही हो. This is how you should. चलो, thank you. मेरा Pratik, सेकंड क्वेश्चन है सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े थे सर? मैं रामजस कॉलेज से पढ़ा हूँ. ओके सर. I did my history honors from there, and while studying also I played cricket a lot. और आप कितने घंटे पढ़ते थे सर? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कितने घंटे आप पढ़ते थे सर? At least 14 hours. My God. And ये एक दिन नहीं करना पड़ेगा, ये 1 साल 1.5 साल करना पड़ेगा लगातार. Okay sir, thank you sir. Thank you, Mr. Mishra. Thanks a lot. Thank you, Pratik. Bhagat Ram, please ask your question. अपने को unmute कीजिए please अपने side से. Bhagat Ram. Sir, if you allow me, Hello? can I take 1 minute, one minute break, sir? Sir, Sir, please go ahead, Rajesh sir. What, sir? I'll just take 1 minute break. Please go ahead. Thank you. हाँ जी मैडम. भगत राम, आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा. राइट. थोड़े से जी. ब्रेक ले रहे हैं. जी. मैम. हाँ जी, बताइए. मैम, मुझे भी पूछना है सर का क्वेश्चन. ठीक है, अभी सर जब वापस आएंगे उसके बाद भगत राम पूछेंगे, उसके बाद आपका भी चांस आएगा. यस मैम. थैंक यू मैम. वेलकम. Ma'am, good evening. Hello, ma'am. गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी. गुड इवनिंग. मैम, मैं NIBH देहरादून से बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र सिंह राठौर. हाँ जी, बताइए. मैम, सर से एक प्रश्न पूछना था. जी. सर अभी वापस आए हैं, आप हमको 2 मिनट दे दीजिए. हम पहले ओके, थैंक यू. फिर आपके पास आते हैं. ठीक है. यस, भगत राम, आप अपना सवाल पूछ लीजिए. हेलो, कैन यू हियर मी? राजेश जी नमस्कार. नमस्ते. अजय जी, मैं भी NIBS से ही हूँ. मैंने 1982 में हाई स्कूल किया था. जी बताइए. और अभी मैं बैंक में, यूनियन बैंक में मैनेजर हूँ. तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, बड़ी ताकत मिली सर. ये है कि जो आपने किया इतने कम समय में और जितने मुश्किलों को झेल करके, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं. थैंक यू. सर, मेरा सवाल ये है कि अब जब आप इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए हैं, तो ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए आप क्या करना चाहेंगे और क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके? क्योंकि पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ कि मतलब इतना आसान नहीं है ब्लाइंड के लिए रास्ता, जितना हम समझ रहे थे. 25 साल में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने देखा नहीं है. तो थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालिए. धन्यवाद सर. नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई विल स्लाइटली डिफर फ्रॉम यू. पहले से चीजें काफी चेंज हो गई हैं और आपको ऐसा लगता होगा शायद कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं
वो इस बारे में कंसर्न्ड नहीं रहते। पॉलिसी मेकर्स को ही लेकर बात करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, right from chief secretary to chief minister, everybody is on the same page. We have to do something about them, right? मतलब ये बिल्कुल प्राथमिकता कि उसमें हम लोग आते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि they don't know how to do it. और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जिनके माध्यम से वो लोग करते हैं, एनजीओज को इन्वॉल्व करके, with all reservation, to be very frank, they are, I mean, उनके लिए ब्रेड बटर होता है। For them it's not a matter of जी। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले मैं वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में भी एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी था। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, राइट नाउ ही इज ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, फाइनेंस कमीशन में है वो, मिस्टर मुखमीत सिंह भाटिया। He was more concerned about this thing. फिर हमने जो एक्ट को अडॉप्ट किया, वो he threatened me कि within 1 month you have to, I mean, जब हम किसी एक्ट को अडॉप्ट करते हैं तो हमें उसका हिंदी अनुवाद कराना पड़ता है और राजभाषा में जाता है, उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं स्टेट के पर्सपेक्टिव से। So he warned me कि 1 महीने में ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि वो एक्ट बनने के बाद फिर क्या होना चाहिए। अब वो ऑफिसर अगर चेंज हो जाएगा तो उसकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगी, और ऐसा नहीं वो नेगेटिव होती है। लेकिन इसको जो हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं जिस ढंग से, और जिस ढंग से हम लोग चाहते हैं कि इट शुड बी इक्वली सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन, तो उसमें दिक्कत आ जाती है हम लोग को, मतलब लार्जर उसमें हाँ उसमें देखें तो। और ऐसा नहीं, चुनौतियां हर कम्युनिटी में है। You go and talk to tribal community, you go and talk to scheduled caste community, you go and talk to Muslims, you go and talk to, हाँ सब जगह समस्याएं हैं। ऐसी बात नहीं कि उनके मन में किसी चीज को लेके कोई अवधारणा नहीं बैठी हुई है, लेकिन क्योंकि संख्या के दृष्टिकोण से, इसीलिए मेरा सिविल सर्विसेज में आने का एक पर्पज ये भी था कि पावर स्ट्रक्चर को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे, you cannot influence the things. Exactly. तो मैंने उसमें ऐसी चीजें डाली उस एक्ट में कि nobody opposed it in the cabinet. उसका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिपरकशन भी था, लेकिन सभी लोग हैप्पीली उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अब इशू जैसे ये आता था वहां पे कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक चीफ सेक्रेटरी की कमेटी में मैं था, उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई हमारा जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसमें हमें कितने लोगों को फ्रॉम डिसेबिलिटी वी हैव टू टेक। अब उसमें इशू ये आया कि भाई इस एक्साइज डिपार्टमेंट में तो बहुत सारा इंस्पेक्टर का काम है, ये आप इसको कैसे कर। देखो ये भी एक बिल्कुल सही बात है कि हर चीज को कह देना कि हम कर सकते हैं, नहीं ये संभव नहीं है, क्योंकि नहीं जिनको दिख रहा है वो भी हर चीज नहीं कर सकते। इट्स नॉट नेसेसरी, आई कैन नॉट बी ए गुड म्यूजिशियन। तो उसमें हमने ये कहा, तो उसमें मैंने नहीं बोला, रादर चीफ सेक्रेटरी शी टोल्ड कि नहीं अगर वो लोग जो कम्बैटिंग नेचर का जॉब है वो नहीं कर सकते तो इसको आप कंपनसेट कीजिए उनको क्लरिकल में देकर। तो उन्होंने ये स्टैंड लिया, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है व्हेन दे आल्सो डोंट नो उनको क्या करना है। एंड ऑब्वियसली दिस ऑलवेज फाइटिंग फॉर द फंड्स, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, देन आपका कितना ज्यादा रुझान इस सेक्टर को लेके, ये सब चीजें तो होंगी ही होंगी। लेकिन पहले से चीजें काफी बदल गई हैं बंधु, जहां तक मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, या फिर मैं ऐसी व्यवस्था में रह रहा हूँ जहाँ से मुझे पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन चीजें तो चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजी के आने से तो काफी चेंज हुई है। नाउ आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी इज मोर एज कंपेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू सी इन द पास्ट। नहीं सर, रिसोर्सेज के मामले में देखिए, अब आप थोड़ा सा लोगों की थिंकिंग चेंज जरूर हुई होगी, लेकिन जिस प्रकार के रिसोर्सेज मिलने चाहिए विजुअल इम्पेयर्ड को मिल नहीं पा रहे। मैं बैंकों में देखता हूँ कहीं कंप्यूटर है तो जॉज नहीं है, जॉज अगर अवेलेबल है तो उनके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं। मैं बहुत 30-35 साल से ये बैंकिंग में देख रहा हूँ,
और जाकर के हमको बराबर ऑफिसर्स को समझाना पड़ता है कि आप इनके साथ ऐसा कीजिए। मुझे बुला कई जगह जाना पड़ता, गया हूँ मैं, तो बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रहती है और 5-5, 6-6 साल से 7-7 साल से लोग खाली बैठे हुए हैं एक ही सीट पर, कोई उनका आने का नहीं है, जाने का नहीं है, कोई किसी को मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार की जो थिंकिंग है थोड़ा बदलने की जरूरत तो है। कैसे बदला जाए इस चीज? नहीं, इसके लिए तो वी हैव टू फाइट इट आउट। और आप जहाँ हैं या फिर जो कंसर्न ऑफिसर है वो जो है उसको फाइट करना, फाइट इन द सेंस कि ये तो आपका लीडरशिप होना चाहिए, ये तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। मैं तो अभी एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ, सभी मेरे कोई इशू नहीं है। मुझे यह है कि मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है, मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। हाँ, नहीं तो इसको तो आपको सही प्लेटफॉर्म पे रेस करना चाहिए। आप हमारे कार्डर के ही थे कुछ दिन पहले तक, फाइनेंस सेक्रेटरी जो राजीव गुप्ता जी थे, झारखंड कार्डर के आईएएस ऑफिसर थे। आप बोलते तो उनको लिखा जाता, वी कैन राइट टू फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर वी कैन राइट टू फाइनेंशियल सेक्रेटरी बैंकिंग जो देखते हैं। इन फाइनेंस मिनिस्ट्री देयर आर टू सेक्रेटरीज, वन इज फाइनेंस सेक्रेटरी एंड अदर फाइनेंशियल सेक्रेटरी। जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हो सारा बैंकिंग सेक्टर वही देखते हैं। सर बहुत सारी चीजें हैं ना जो होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है कि हो नहीं। जैसे मैं बताता हूँ, पीडब्ल्यूडी एक्ट में कहा गया था। नहीं इसका देखिए मैं बताता हूँ, वो क्या रहा है कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो तो जो अभी के हैं, जो पिछले 10, 15, 20 साल से हैं, वो तो बहुत ज्यादा अपडेटेड है। क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, वहां से एक उनकी हम लोग की कंपल्सरी विजिट होती है एनआईवीएच में, ताकि वो इस प्रॉब्लम को हमेशा समझे ये क्या है। ठीक, और कंपल्सरी है वो विजिट। लेकिन जो अदर ऑफिसर्स हैं, जैसे बैंकिंग में हो गए या फिर अदर जगह के जो हो गए, उनमें दिक्कत आती है, कुछ भी पता नहीं है। हाँ, उनको पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमें ये लेटर लिखना चाहिए कि भाई जितने भी नए जो रिक्रूट होते हैं, जीएम होते हैं, ये होते हैं, इन सभी को वहाँ कंपल्सरी विजिट करानी चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 दिन की, जब वो आपको समझेंगे। बिकॉज सी लाइफ इज वेरी प्लेन एंड सिंपल इन द सेंस कि कोई आपको हार्म करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ है। नहीं सर, नहीं, समय लगेगा, ऐसा लगता है। ये तो पक्की बात है। दूसरी पक्की बात ये है कि देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन। अगर आप उसमें सर्वाइव करते हो तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेगी। नहीं सर, एक चीज और भी थी, जैसे यदि कहा गया ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट में कहा गया कि जितने बिल्डिंग्स बनेंगी उनमें एक्सेसिबिलिटी को विशेष मतलब का ध्यान रखा जाएगा, ये एक्ट में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा किसी चीज पर ध्यान दे नहीं रही है गवर्नमेंट। इसके लिए तो आप जैसे लोग ही कुछ कर सकते हैं। नहीं, जैसे हमने झारखंड में इसके लिए क्या किया था कि जो हमारे चीफ इंजीनियर थे ना, उसको मैंने सोकॉज किया था इस चीज के लिए कि जितने भी बिल्डिंग बन रही हैं तो रैंप तो कंपल्सरली बना देते हैं, लेकिन फिर वो बाथरूम का साइज छोड़ देते हैं व्हीलचेयर के लिए। लेकिन लिफ्ट में चूंकि अब इनबिल्ट आता है वो सारा, जो उसमें तो स्पीच इंजन नहीं होता है। हाँ, लिफ्ट में ब्रेल भी लिखी होती है। हमने ये भी कंपल्सरी बनाया था कि टेक्टाइल मैप होनी चाहिए हर बिल्डिंग के बाहर। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आई थिंक ये जो डिस्कशन है, मेरे ख्याल से और भी लोग मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। हाँ, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है ना सर, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा आप लगातार क्योंकि आप इस लेवल पर हैं, प्रयास कर सकते हैं, तो लगातार आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जरूर थैंक यू वेरी मच। गुड सजेशन एंड आई थिंक राइट। ओके, अगला कौन है? शबनम। We'll take Mayank's question. Am I audible, sir? Yes, you are. Yes, you are audible. Hello, sir. My name is Mayank, and I'm from. I've just graduated from Delhi University this year, and I've written the entrance for JNU on the 22nd of this month. So, sir, I'm going for CPS. Let's see. But my question is to you, sir. That I'm very fascinated about the foreign services, and as I can see that there are various examples regarding the administrative services as far as visually impaired is concerned, but there are not many examples for the foreign services. There was one lady, Benozafine ma'am, who was there. So can you tell me that are the doors for the foreign services really open for the visually impaired, and what are the nitty-gritties of it if we get the services? Are we going to get the foreign postings and all, or are we going to be just sitting around the ministry only? So yes, sir.
नहीं ये देखो ये every it's not necessary that every IS will become district magistrate. Again, it depends how you handle the situation, to what extent you are able to convince the political executives and how people take you. बहुत सारे ऐसे भी रहे हैं जो कि फॉरेन सर्विस में रहे। जैसे उदाहरण देता हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हमारे बहुत ही रिनाउंड ब्यूरोक्रेट हैं एनके सिंह। उन्होंने काफी जो है इनका फाइनेंस पे भी अभी शायद वो हैं भी, आई थिंक ही इज चेयरिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी आल्सो। ही नेवर बिहार काडर के हैं, वो कभी एक दिन भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं रहे। राइट फ्रॉम द बिगनिंग उन्होंने सेंट स्टीफन से फाइनेंस किया था, इकोनॉमिक्स किया था, उसके बाद वो हमेशा उसी में सर्व करते रह गए। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, कई लोगों ने जिन्होंने लिख के दिया कि आई डोंट वांट, आप बाहर जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड। अगर फॉरेन सर्विस में गए हो तो फॉरेन पोस्टिंग तो होगी ही, अदरवाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन सर्विस? आप कह रहे हो एम्बेसी में दे देंगे, मिनिस्ट्री में दे देंगे, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या देते हैं। And I think Beno Zafin was posted in Paris for a few years. सर ये लोग ट्रेनिंग पे भी इनकी पोस्टिंग होती है सर फॉरेन में। Sir, I think that while being in foreign services, we can like represent our community globally and like This? yes, sir. Definitely, I mean it's very good idea. Can I call you back? Can move ahead. I think best wishes with you. Thank you, sir. And, Thank you. I appreciate your viewpoints. Thanks a lot. Yes, sir. Okay. We can, Keval Krishan, please unmute yourself and ask your question. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. मैंने लास्ट ईयर ही MSVH से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और अभी मैं BA प्रोग्राम रामजस कॉलेज से कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं आगे UPSC करना चाहता हूँ और मेरे साथ एक इशू है कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो मेरा 100% का है और मैं विजुअल एक लो विजन हूँ, तो सर क्या ये मेरे को आगे प्रॉब्लम करेगा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। It's not going to create any problem, but I think आप मेडिकल सर्टिफिकेट को करेक्ट करवाओ। What is problem in it? कोशिश की थी सर मैंने उसे कराने नहीं की। यार, लो विजन का टोटली ब्लाइंड का बनाना मुश्किल है। टोटली ब्लाइंड का लो विजन का बनाना कैसे मुश्किल है? The moment डॉक्टर will ask you say 5 fingers 4 fingers, will say कि ठीक है। यस सर। या फिर आप एम से अपना सर्टिफिकेट बनाओ, उसमें रेंज होता है, they don't exactly mark के 20% बचा, they'll say from 10% to 25%, from 0 to 10%, इस तरह का रेंज है उनका। यस सर, थैंक यू सर। Okay, thank you, Keval. सेजल, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे अपना। सेजल, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मेरा प्रश्न था कि सर मुझे भी सर IAS ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी फील्ड में जाना पड़ेगा? सर आपने प्रांजल पाटिल इनका नाम सुना है सर? हाँ सुना है बिल्कुल। she was my junior, वो मेरी जूनियर थी ये नहीं। हाँ सर। सर वही सर, मतलब जो पोस्टिंग है सर वो केरला में हुई है ना सर? मैंने उनका इंटरव्यू कल सुना है। सर मुझे भी बनना है सर, उसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी? आपने ग्रेजुएशन किया है? नहीं सर, मैं 7th में हूँ। नहीं यार, it's too early to, I mean I must salute your courage and your thinking. ऐसा करना, 7 में जब आप 11th में आओगे तब हम एक बार फिर बात करेंगे। Yeah, in the meanwhile, can you hear me? Yes, George, we can. Yeah, in the meanwhile, when you are in 7th standard, आप ये देख के चलेंगे, जैसे कि राजेश ने कहा था, that your interest in general knowledge, your interest in developing your language skills, your interest in developing ये सारे skills पे आप अभी focus करो. Don't focus on preparing for the exam, but focus on developing your personality, your thinking power. Start reading a lot. Read newspapers, magazines, novels, fiction, non-fiction.
जिससे आपका जो व्यक्तित्व है वो उभर जाएगा, एंड देन बाय द टाइम यू डिसाइड दैट हमें IAS बनना है, देन इट बिकम्स मच इजियर फॉर यू टू चूज। हाँ सर। सर वही सर, मैं यूट्यूब पे मतलब जनरल नॉलेज का देखता हूँ ना सर हर बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक आप बिल्कुल देखो, और आप जब 10th का एग्जाम दोगे, आप प्लीज यू कॉल मी, डेफिनेटली आई विल गाइड यू, और हम लोग साथ में करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। थैंक यू। Okay, नवीन कुमार, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नवीन। सर मैं नवीन कुमार शर्मा समस्तीपुर बिहार से सर बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताओ। सर मैंने ग्रेजुएशन 2015 में कर लिया था, और मैं सर सिविल सर्जन ऑफिसर में सर स्टडी स्टार्ट करना चाहता हूँ अभी जीरो से ही। तो सर इसके लिए सबसे पहले नीचे वाले पोस्ट के लिए सर अप्लाई करना अच्छा रहेगा ना? नहीं, आप अप्लाई तो देखो किसी में भी करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, 2-3 पेज, कि इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कब कब होता है, फॉर्म्स कब कब निकलते हैं। और साथ ही साथ जब इसकी जानकारी आपको हो जाएगी, और कभी भी ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज की तैयारी करो, अदर सर्विसेज भी हैं। सर्विसेज इन द सेंस कि आप मतलब सिविल सर्विसेज में तो बहुत सारे जो है कवर होते हैं हमारे यहाँ, लगभग आई थिंक 26 के आसपास। और भी चीजें हैं जिसको कि आप कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन क्या, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? सर ग्रेजुएशन अभी करंट में चल रहा है, 3rd सेमेस्टर। अभी करंट सर कर रहा हूँ। करंट कर रहे हैं, मतलब अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है ना? जी सर। तो आप ऐसा करो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप नेट और JRF के लिए भी लिखो, हो सकता है आप एक अच्छे प्रोफेसर बनो। तो पहले डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। ये जरूरी नहीं कि जो चीज़ अवेलेबल है वही कर देना है, जो आपको अच्छा लगे वही करो आप। और आप मेरे हिसाब से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप टू ट्राई फॉर दिस लेक्चररशिप के लिए आप ट्राई करो, और साथ ही साथ जो है आप सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यस सर। ओके, डॉक्टर सैयद हुसैन, आप प्लीज अपने को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हाँ जी। Yeah, am I audible? Yes, you are. Yes, you are audible. So a big shout out to the team, and particularly to George, and it was a fruitful event as a whole, and I was though I missed half of it, but it's not an issue because I was able to relate with you, Mr. Rajesh, because it seems like you're cool and composed, as in the right attitude to be a in your position, and why I was able to relate with you is, as you said about your trip to Pakistan or something, you were trying to say that you related with them. I had that moment, that kind of a moment. Now I was able to relate with you because the way you felt for others, and you about the accessibility, like giving priority to it. Identifying the problem is the first thing. Solution is comes later. But most of people in our community whom I have listened to, I got fed up with them, like highly disappointed, because they're too optimistic and not for realizing the problem. But you realize it and reiterated it as often as possible. So, and in many ways, like, I'm really happy to have listened to you, and so all praise to you, because thank you. Yeah, and in the current scenario, or whatever it might be, being in that position is going to be really hard. I understand. Even normal are quitting. I had seen people quitting, but and currently, like a couple of days, we are noticing a document that's called harmonizing or harmonized guidelines. That's for accessibility sake.
our government is trying to force in a draft for all sectors. Usually it will be like every sector there will be individual guidelines, but now the government is trying to force a universal guidelines, which is not going to work because it's shabby. So I understand in that case, like in being inside and trying to make a point, making a mark is hats off to you. And that 7th standard guy, he's going to be, you're going to be his role model forever, and the kids to come, amazing, crazy, I would say, like watching YouTube. Thank you. Yeah, so your question, any question? Yeah, no, only praise. Like I just wanted to say thank that you. Thanks maybe a lot. maybe in case if I want to ask, I would appreciate it. Really yes, appreciate it. thank you. Like it's like what's your hobby? Like you've done everything, and apart from that, what's your hobby? How do you unwind yourself? That's my question. Thank you. As for obviously, I'm a born sportsman in the sense I used to play cricket, so I still watch cricket, still play cricket, still organize cricket. Events sometimes. And अब तो मेरी कोशिश रहेगी कि I'll try to become part of Jharkhand जो हमारा cricket association है. In case if I'll get into it, then देखते हैं. बहुत सारा जो है स्पोर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटी होता है. With bureaucrat we can go to BCCI also or become secretary sports also. तो मेरा हॉबी बेसिकली बॉस ये है कि फर्स्ट थिंग इज कीप योरसेल्फ हैप्पी. फर्स्ट हॉबी इज वेरी important. If you're not happy, you cannot make others happy also. Second thing, life is very plain and simple. I don't try to complicate it. I don't think. Sometimes overthinking while you're everything. So yes, problem is there, and there is always problem for everyone. But we have to accept these problems, and then we have to move ahead. So second thing, I just keep my life plain and simple. And third, other allied activities like obviously playing, talking about, discussing sports, then discussing like cricket and all. बड़ा अच्छा लगता है इस पे बात करने में. इस साल का मेरा सक्सेस है ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया था. सो आई हैड बेट विद माय ब्रदर. मैं उससे 20,000 रुपीज जो है जीता भी. He definitely will bring gold or silver. You were saying in a 4th position. I guess so. This is how I keep involving myself in so many things, which gives me happiness. As such, hobby की बात तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से I think the sports is my dream of my life. I'll keep following this. Thank you. Rita, you can unmute yourself and ask your question. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, Shanwaz here. Could you allow me to ask question after this person? Yes, sure. There are actually a lot of people who have raised their hand for quite a long time. I'll come to you. We'll take it. Okay, thank you. Yeah, the other thing is that we are on 6:47 just now, so we must close by 7. Rajesh also needs to go, and we all need to close too. So keep the questions short, and Rajesh also आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे बात करें. Yeah. Sir. Rita, can you unmute yourself? Okay, we'll go to Nitin. Nitin, ask your question. Please unmute yourself. Nitin, are you able to unmute at your end? Your video is on. I know you're trying. Okay, so we'll come back to you. What about Balbir Singh? Balbir Singh? Can you unmute yourself? Yeah, ma'am. Yeah. Am I audible? Sorry. Okay. Hello, good evening, sir. This is Nitin Good evening. Sharma. Good evening. सर मैं अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा और मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन है. मैं सर करंटली जॉब करता हूँ एज ए स्पेशल एजुकेटर टीचर, और सर मैंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने नेट भी क्लियर किया हुआ है, और मैं अभी करंटली UPSC की तैयारी कर रहा हूँ. सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा इंटरेस्ट है रिसर्च वर्क के लिए, PhD करना चाहता हूँ.
तो क्या आफ्टर यूपीएससी क्लियर करने के बाद जॉब में आने के बाद हमारे पास ऑप्शन और टाइम होता है कि हम अरे बहुत अपना होता है, स्टडी बहुत होता है। नहीं, वी गेट स्टडी लीव आल्सो फॉर 5 years। आप फॉरेन स्टडी लीव के का किसी ऑप्शन भी, होता है? हाँ, आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी। वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी। काफी लोग जाते रहते हैं हमारे साथ जो रहते हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल चिंतित ना हो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, Galaxy M51. I don't know your name. Diksha, please unmute yourself. Diksha, can you unmute yourself? Okay, we'll come back to you, Trilok Singh. Hello, ma'am. Okay, okay, Diksha, go ahead, please. Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्लीज। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जब भी मैं ज्योग्राफी को स्टडी करती हूँ तो उसमें इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो मैप का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सर आप देन व्हाट यू डिड एट योर टाइम? Yeah, I have already explained it ना। It's very plain and simple। मैप में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है? मैं तो प्रॉब्लम आने का मतलब ही नहीं बनता है। If you just try to customize it the way you can feel it, आप ऐसे ही कर लो ना। इक्वेटर में क्या है, एक बॉल खरीद के लाओ, उसमें एक छोटा सा धागा बांध दो या चूड़ी पहना दो, उसको इक्वेटर हो गया वो। उसमें तो कोई दिक्कत ही, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो ही जाता है। आप जिसने ज्योग्राफी पढ़ा है, यू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, ज्योग्राफी को आप अंडरस्टैंड करो, फिर उसके बाद ही जो है आप समझ पाओगे कि I इसको only कैसे। studied geography, but not with the concept way. नहीं, can you concretize your question? What exactly you are not understanding in geography? Actually, जैसे कुछ भी है, मतलब जैसे अगर सर मैं क्या बताऊँ, जैसे सर मैं एक एग्जांपल अब जैसे सर जैसे नदी का है कि ये नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ बहती है। तो सर मुझे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और कि यहाँ पे एक नहीं, अब नदी को समझने से पहले एक बार आप हमारा जो फिजिकल मैप है, मैंने बताया वही ना, आउटलाइन को क्लियर कर लो। देयर आर सो मेनी रिवर्स। ये तो समझते ही होगी कि मतलब समझते हैं कि जो पंजाब के साइड की बहने वाली नदियां हैं, ये सब तो हाँ ये आप समझते हैं। जो हमारा जितने भी हिल एरिया से निकलता है या फिर एमपी से निकलता है, बहुत सारे जगह से जो नदियां होती है। फिर आपकी एक्सेप्शन साउथ के दोनों हो गए, रेनफेड रिवर्स हो गए, वो सब हो गया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट। आपको क्या दिक्कत है? नदी जाती है, दूसरी जगह जाती है, स्टेट से ही तो होके नहीं जाती सर, है। मुझे एक्चुअली ये मतलब सारी ना याद नहीं रह पाती। मतलब जो पंजाब के साइड नहीं के है तो वो तो ठीक है कि ये कहाँ नहीं, से सारी निकलती नदियां किसी को याद नहीं है। सारी नदियां थोड़ी कोई याद कर लेता है भाई। इंपॉर्टेंट रिवर्स तो याद होनी चाहिए आपको। सारी तो नदियां बहुत सारी होंगी, हजारों कई हजार होंगी। आप इंपॉर्टेंट रिवर्स को आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद उसको आप देख लो कि उसका क्या जर्नी क्या है, किस स्टेट से होके निकलता है। अगर आप सिटी आइडेंटिफाई करना चाहोगे, सिटी तो और टफ होगा। फिर आप ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करोगे तो और ज्यादा टफ होगा। तो एटलीस्ट स्टेट्स का देख लो आप। जो आपका पर्पस है वो किया जा सकता है। इट्स नॉट कि आप नहीं कर सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू कैन नॉट डू मैप। यस सर। प्लस आईआईटी दिल्ली में एक डिवीजन है जहाँ पर टैक्टाइल मैप्स वगैरह बनाया जाता है। दैट माइट बी यूजफुल। हाँ सर, वो तो थ्रेडिंग हो जाती है सर, उसपे थ्रेड भी चिपका देंगे हम तो आराम से फील कर सकते हो आप। क्या प्रॉब्लम है इसमें? राइट। आप उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जो पहली बार थ्रेड चिपकाएगा, आप बोलो जैसा इसका प्रिंट आउट है, इसके आउटलाइन पे आप थ्रेड चिपका दो, जहां जहां रिवर है उसका भी थ्रेड चिपका दो। In IIT Delhi, they actually create tactile maps using 3D printing. उसमें सर क्या होता है कि जो टेक्टाइल मैप है सर, ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार कि उसका आउटलाइन इतना मोटा होता है तो उसमें जो कर्व्स क्रिएट होते हैं सर, वो बहुत मतलब टेंजिबल नहीं हो पाता सर। लेकिन जो थ्रेड से करते हैं हम, तो मैप का जितना भी मूवमेंट है, छोटा से छोटा, वो मतलब कई बार वो मैप मूवमेंट भी नहीं करके थोड़ा सा शेकी होता है। कई बार उसमें आपको एक वाइब्रेशन लगेगा, वो सब भी फील हो जाता है सर थ्रेड में। राइट सर एक चीज, हम जब स्कूल में थे 10th में, साइंस की जो क्लासेस हमें कराते थे, तो वो ग्लू गन लाते थे। ग्लू गन होती है, उससे भी बहुत अच्छे से मतलब ग्लू होता है, वो पिघल के
एक लाइनिंग बहुत अच्छे से हमें समझाते थे साइंस में और हाँ नहीं, इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपको उसमें दिक्कत आ सकती है आपको थोड़ा, जो मीन मोड मीडियन पढ़ते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो होता है हमारा सारा, तो उसमें अगर आप ये कहोगे कि जो कर्व है डिमांड एंड सप्लाई का, इस सब में थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि जो है दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कैसे फ्लक्चुएट कर्व जो है ईयर वाइज किस ढंग से बिहेव किया है, तो उसको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। वो भी मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। आप ट्राई तो करके देखो, इसको इंटरेस्ट होगा तो खुद हो जाएगा। Okay, so we'll move to Rita. Are you there? Can you unmute yourself? यस मैम। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ मतलब कि सॉरी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर एंड मैम। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्लीज गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैं अभी प्रेजेंट टाइम में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ और उसके बाद एक प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, संस्कृत लेक्चरर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? डू हार्ड वर्क, दैट्स इट। आप बढ़िया से हार्ड वर्क करो, नेट का एग्जाम क्लियर करो, उसका क्वेश्चन बैंक लाओ, उसको क्वेश्चंस को पढ़ो और पोस्ट ग्रेजुएशन लाओ, फिर नेट का एग्जाम जाएगा तो जस्ट इंटरव्यू में बैठो, आपका होगा। दिस इज, करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, दैट्स इट, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। जानना चाहती हूँ कि मुझे कौन से राइटर की बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए नहीं जिससे सॉरी, कि मैं अच्छा। मैं बहुत ज्यादा हिंदी के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं, लेकिन हाँ संस्कृत के बारे में भी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, सॉरी। लोग पाणिनि को पढ़ते हैं, वाण भट्ट को पढ़ते हैं, वही सब पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ जी, त्रिलोक सिंह रावत। वो सर तो मैं पढ़ चुकी हूँ सब कुछ। तब आपको कोई नहीं रोक सकता। हेलो मैम। आप पक्का प्रोफेसर बनेंगे। हाँ जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए त्रिलोक जी, सवाल पूछिए अपना त्रिलोक जी। हाँ हाँ नमस्कार मैम। नमस्ते, नमस्ते त्रिलोक, बताओ। हेलो। हाँ जी राजेश जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए प्लीज। नमस्ते राजेश जी, नमस्कार। नमस्ते। राजेश जी नमस्कार। राजेश जी नमस्कार, मैं त्रिलोक रावत देहरादून से बोल रहा हूँ। नमस्ते त्रिलोक। पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर, आपने बहुत मतलब बहुत बड़ी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बंधु, आप प्रश्न पूछो। आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही है त्रिलोक जी? कुछ हेलो। हाँ जी। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए त्रिलोक जी, प्रश्न पूछिए प्लीज। I'm going to move forward. I will take बलबीर सिंह, आप अपना सवाल पूछिए तब तक। It's already 7 o'clock, I think. Yeah. राजेश भाई नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं बलबीर जी आप? बढ़िया, बहुत गुड इवनिंग। और मेरा सवाल ये है कि आप एज आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही। हाँ जी, एज ए मतलब एज ए IAS ऑफिसर आपको पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है, मतलब कितना किस तरह से आप हैंडल करते हैं, और एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कितना ये चैलेंजिंग होता है कि आप अपने काम के अलावा जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसको भी आप हैंडल कर सको। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर तो उसमें तो कोई ये इसका मतलब ही नहीं होता कि आपको विजुअली इम्पेयर्ड हो या फिर यू कैन सी। मेरे हिसाब से वो तो आपकी पर्सनालिटी है, वही हैंडल करती है उस चीज को। और इसको एक्सप्लेन जो आप करने, हाँ 2-3 चीजें बहुत क्लियर है। अगर आप ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर हो तो बहुत ज्यादा आप पर प्रेशर नहीं पड़ता है, लोग पहले ही समझ जाते हैं कि बहुत ज्यादा बात करना या फेवर करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, आप कभी भी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा मिलेंगे उनसे तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट भी करना शुरू करेंगे। तो
और तीसरी चीज ये भी है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है ऐसा नहीं होता वो गलत होता, कई चीजें सही होती हैं उनकी। समटाइम्स वी हैव टू वर्क हार्ड, तो हम लोग उसको उस ढंग से नहीं लेते जिस ढंग से वो लेते हैं, क्योंकि उनका जो है ब्रेड बटर वही रहता है, तो उनके डिमांड मुझे नहीं लगा, मुझे मेरे ऊपर तो आज तक ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर। कई बार ये जरूर आती है कि जो जो डेवलपमेंट आप डिसाइड करते हो और जो डेवलपमेंट वो डिसाइड करते हैं, समटाइम्स देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनको लगता है कि जैसे कोई चीज मेरे क्षेत्र में ही और आप एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहेंगे वो पूरे जिले में, ये कई बार बोन ऑफ कंटेंशन होता है। आपने अगर किसी एक कंस्टिट्यूंसी के लिए 50 करोड़ रुपए इशू सैंक्शन किया, दूसरी कंस्टिट्यूंसी वाला भी बोलेगा हमको चाहे उसकी आवश्यकता हो या ना हो। तो मेरे हिसाब से लीडरशिप मतलब सरकार के बीच बहुत ज्यादा जो है तनातनी रहती है कि बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी वो शायद वो नहीं कर पाते हैं जो लीडरशिप चाहती है, तो इनमें आपस में काफी तनाव रहता है। देखो एट द एंड ऑफ द डे जो आवाज ब्रेक हो गई शायद। Rajesh ji, we are not able to hear you. Now can you hear me? Yes, we can hear you. हाँ, तो बलवीर जी जो चीजें बाहर से देखती हैं, टीवी में दिखती हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे ऑल मिनिस्टर्स या कोई भी हो उसको सेक्रेटरी से ही काम कराना पड़ता है, बिकॉज फाइनेंशियल जो पावर होती है वो सेक्रेटरीज के पास होती है। दे कैन नॉट विड्रॉ मनी, दे कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सेक्रेटरीज। तो एक फाइन बैलेंस होता है ये लोगों के बीच। बट if you are corrupt and if you'll expect from somebody he should not be corrupt, then it is a problem. Okay, thank you. शहनवाज, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। Hello, good evening, sir. हाँ, जल्दी जल्दी पूछो please. So sir, just I wanted to know which course have you done from JNU? After that I will ask you. I did history. I did okay history. Okay, then fine. Actually I am also doing history from here right now. So I am looking forward to keep my history in optional in UPSC. So how I have to prepare for optional in like नहीं, मैंने वही बताया कि वो उसका जो आप सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू में जो कर रहे हो उनका अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। प्रिपरेशन का you just go through question banks and all the kind of questions they have earlier asked. You properly analyze this question, try to write sometimes answer also. If you can get answer from somewhere else, accordingly you analyze as per your context of understanding. And there are so many things that, I mean, you are intelligent enough to understand such small things, that how you are going to prepare from history is always history, but you have to change your perspective. They ask small questions. तो वो वैसा नहीं होता है कि ह्यूज ट्यूटोरियल्स विद ऑल बिब्लियोग्राफी होगी और बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ, वो बहुत सिंपल होता है यार। दे आस्क यू वेरी स्मॉल पॉइंटेड क्वेश्चंस, उससे पता लग जाता है हमको कि इसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी कितनी है। Okay, sir. Oh, sir, last, how did you use to take out time? Because tutorial here, it is much rigorous, as you know, like what happened in मुझे JNU. तो लगता है, मैं तो ये पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि being a visually challenged, you should not take history at all as a subject, to be very frank, because आपको जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो नहीं पढ़ पाते आप ना, मतलब जो अलग लैंग्वेजेस में। तो आपकी क्या होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम रिसर्च पर्सपेक्टिव, तो वो बहुत ही मेरे हिसाब से चैलेंजिंग इन द सेंस कि ना आप मतलब अरेबिक पढ़ पाओगे, ना आप संस्कृत उस ढंग से पढ़ पाओगे। बहुत सारी भाषाओं में, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीजें हैं। प्राइमरी सोर्स को से आप डिप्राइव रह जाते हो। आई विल नेवर एडवाइज, नोबडी एडवाइज मी टू लाइक दिस कि यू शुड नेवर। हाँ, फ्रॉम टेकिंग जॉब पर्सपेक्टिव आप कर सकते हो कि भाई अच्छे मार्क्स आ गए, जीआरएस क्लियर हो गया, देन वो भी बहुत ज्यादा सरफेस पे ही पूछते हैं। बट एज ए रिसर्च स्कॉलर आई डोंट थिंक वी शुड एवर टेक हिस्ट्री। I think Shahnawaz, you have anything more to ask? No, just I was asking like how did sir manage in JNU like history? How did sir manage? It's all about reading, yeah. As much as time you can give. I mean, what about management of something? I mean, it's very simple. You are like other students only. ये सब चीजें हैं कि भाई आपको पढ़नी तो पड़ेंगी चीजें। लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। You will have to also do hard work. Maybe you are not good at English. Maybe I may not be good at English. हो सकता है थोड़ी उसको improve करनी पड़ सकती है। Writing जो है वो भी स्किल है। It's not necessarily somebody who is
speaking very good English, or somebody who's very good at English, and at the same time he may be able to write good English also. So I have seen people, वो तो आप अपना strength weakness को analyze करो बंधु, accordingly improve it. देखो आप sales service में जाओ या नहीं जाओ, it's your duty, it's a fundamental duty towards yourself only, that you should keep improving yourself daily. That's it. Thank you so much, sir. Okay ji. Thank you so much, Rajesh. I just like Thank you, to close the meeting here. Sir, I'd like to thank all. There were about 65 odd people who had, I think, logged in, and I think it was a very, very good session. And thank you for your time. And I think there are two things which stood out from what you said, which I think everybody can take away. One is, the leadership, the initiative that you take to resolve situations around you. The second is the problem-solving approach. The problems, as you very rightly said, everybody has problems. But I think those people who are willing to go out and look at solutions, they are the people who go forward. And I think the last bit is that interact with people, learn from them, contribute to their knowledge, and evolve as people. And then you could become an IAS officer tomorrow. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thanks. Thank you very much, everybody.